कर्नाटका गुलबर्गा शहर में बीजेपी के अवामी जलसे से खिताब करते हुए रवि कुमार एमएलसी ने गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर बी फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तान से आई हुई महिला कहा था। इस बात को लेकर कर्नाटका आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीर लिखते हुए रवि कुमार के अल्फाजों की मजम्मत की। कांग्रेस के लीडर्स ने भी रवि कुमार के रवैये के बड़े पैमाने पर मजम्मत की। प्रियांक खरगे, डीके शिवकुमार, दिनेश गुंडूराव, एचके पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए रवि कुमार के गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर बी फौजिया तरन्नुम पर कहे रिमार्क्स पर अपना अपना ख्याल जाहिर किया। रवि कुमार एमएलसी ने भी टेलीफोन पर बात करते हुए डीसी मैडम फौजिया तरन्नुम के ताल्लुक से कहे अल्फाज को वापस लेते हुए माफी मांगी। रवि कुमार ने कहा कि मैंने डीसी मैडम को लेटर लिखकर माफी मांगी है। गुलबर्गा शहर के कई समाजी संगठनों के जिम्मेदारान ने भी एन रवि कुमार के डीसी फौजिया तरन्नुम साहिबा पर लगाए नेशनैलिटी के रिमार्क्स की पुरजोर मजम्मत की है। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। Ms. Fawzia Tarannum B, DEO, Kalburgi, Karnataka. Recognized for the improvement of the health of the electoral roll with special focus on the enrollment of young PWD transgenders for smooth conduct of the general election. ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸಿ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಅವರೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ಅವ್ರು ಯಾರು? 3 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಿಗಡೆ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಘಣ್ಣವರ್, ಮೂರನೇವರು ಹೆಸರೇನು ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್. ಈ 3 ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಗುಲಾಮರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What I spoken on that day, it is not good for officials. So that's why I apologize. So then it is not come to take action. So I already पूछा हूँ, मैं क्षमा पूछा हूँ, इसलिए मैडम को भी मैं लेटर लिखा हूँ और एसोसिएशन को भी मैं वो स्टेटमेंट भेजा। हमारे जैसा पार्टी ऐसा नहीं बताना था, मैं बता दिया। मेरा तरफ से मैं क्षमा पूछता। Indian Administrative Service IAS officers association and lot of officers met me this morning. They are shocked. A very clean integrity officer, a woman. This is the respect they are showing to a woman officers. The government will take action, and I seek an explanation from the BJP president and the central ministers on this. This is how they are treating the woman IAS officers of the state. Mr. Ravi Kumar is nothing but a product of the RSS thought process, who believes in Manusmriti and not the Constitution of India. What action has BJP taken against Mr. Vijay Shah or Mr. Devda, who spoke against Ms. Sophia Qureshi, a serving officer? Mr. Ravi Kumar calls Indian Administrative Service officer that she is from Pakistan. She's a Indian Administrative Service officer. So this shows that they cannot tolerate women in high places. They cannot tolerate women in responsible places. We have seen the speeches, what they're making after the Pahalgam incident, and it shows the dirty mindset that they have. And to accuse people, respectable people, like with this language, it shows how perverted they are. And it is sad. We can't even call them Indians. I don't even think we can call this person a real Indian if he can talk so lowly about our own people. He can't be a patriotic. He can't be a patriot. This is like an anti-national statement made by Ravi Kumar. He is an anti-national. How they fail to understand that you are addressing, you are criticizing another brother or sister of your country. Should they not have this sense? It is unfortunate.
I would only appeal to Mr. Ravi Kumar to withdraw such remark. The state government has registered an FIR against our MLC Ravi Kumar. It clearly shows they are trying to threaten opposition party in Karnataka. Siddaramaiah government is trying to blackmail BJP leaders. During last assembly session, when our MLAs protested against Siddaramaiah government's minority appeasement politics, 18 of our MLAs were suspended for no reason. 18 MLAs were suspended for 6 months. मैं डॉक्टर रईसा फातिमा। हम एक खास मकसद से इस मीडिया पे एक अपना मैसेज देने के लिए आए हैं। हम जो है एक मिली तहरीक के तहत काम कर रहे हैं। हमारी तहरीक का हमारी जो इनसे जो जुड़े हुए लेडीज़ हैं और हमारा जो ग्रुप है तहरीक निस्सा के नाम से हम जो है ना काम कर रहे हैं। एक खास मकसद हमारा आज इन दिनों हम देख रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी एमएलसी रवि कुमार ने हमारे मैडम डीसी मैडम गुलबर्गा के फौजिया तरन्नुम साहिबा के लिए एक रिमार्क किया है और उन्हें पाकिस्तानी है क्या बल्कि जो है ना इस तरह सा एक उनके एक जो है बीजेपी की एक पब्लिक मीट जो गुलबर्गा में हुई थी उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इस तरह के स्टेटमेंट से हमें यानी कि इस तरह के स्टेटमेंट को हम कंडम करते हैं। एक ये इस तरह के एक पर्सनल अटैक्स जो किए जाते हैं एक इतनी रेप्यूटेड लेडी जो यानी कि इतनी रेप्यूटेड पोस्ट पे होने के बाद टारगेट किए जाते हैं, तो ये खास किस्म का पैटर्न चल रहा है। टारगेट करने का एक जो पैटर्न चल रहा है, जो इन्फ्लुएंशियल वुमेन है उनको टारगेट करना सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम है, तो ये हमको नामंजूर है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि अक्सर जैसे कॉलोनल सुफिया के केस में भी हमने देखा है कि जिस तरह से उन्हें भी टारगेट किया गया था, उन्हें भी यानी कि आतंकवादियों की बहन करके रिफर किया गया था। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं हम उसको कंडेम करते हैं। हमारी अथॉरिटीज से खास अपील है कि जो हमारी जो वर्किंग लेडीज हैं, जो वीमेन ऑफिसर्स हैं, उनकी यानी कि डिग्निटी, उनकी सेफ्टी और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उसको प्रिजर्व करें। एट द सेम टाइम एक ऐसा प्रोटोकॉल या फिर ऐसे कोई सेफ्टी मेजर्स जो है ना आप इस्टेब्लिश करिए कि जहाँ पे यानी कि इस तरह के वर्किंग लेडीज या ऑफिसर्स इस तरह के कम्युनल और डिफेमेटरी अटैक्स और पब्लिक अटैक्स से बचे रहें। तो हमारी यही डिमांड है और इसी सिलसिले में हमने कल हमारे तहरीक निसा के तहत हमने कुछ लेडीज जाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस को जो है हमारा मेमोरेंडम सबमिट किया था और जो है आज हमने डीसी ऑफिस में जाकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भी हमारा मेमोरेंडम सबमिट किया है और अपील किया है कि हमारे मेमोरेंडम को जो है विमेन कमीशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल नेशनल विमेन कमीशन तक पहुंचाए और इस तरह के नेक्स्ट टाइम डिफेमेटरी पर्सनल अटैक्स बेस्ड ऑन द रिलीजन ना हो, ये हमारी रिक्वेस्ट है। वुमेन्स स्टेट एंड नेशनल से हमारी ये उम्मीद है और हम होप करते हैं कि हमने जो मेमोरेंडम आप तक पहुंचाया है और इस देश की जो भी महिला ऑफिसर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स और डिग्निटी के लिए उनको बराबर का हक दिया जाए और इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो और लीगल उन पर एक्शन लिया जाए। थैंक यू। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए
महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नजरिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी कुव्वत में कामयाबी के लिए जरूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बाशऊर और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address: Veernakoppam, near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details: 9483444290, 9480107826.